Hi, good morning, everybody. Welcome to another lecture from Legal Sticks Law School. We are running this course, Samvidhan, which is a certificate course on the Indian Constitution, and which is a 30 hours course in total. And today we are moving forward with part 2 of the Indian Constitution, that is the citizenship provisions. So for this particular topic, we will be dealing with two things: the citizenship matters provided in the constitution, which were made at the time when the constitution was commenced. So we will be dealing with article 5 to 11, and after that, or along with that, we will be dealing with the we will be dealing with the citizenship act of 1955. So if I have to start with the provisions, it becomes very important कि भाई what exactly is citizenship, why do we need citizenship, or what brings to a person when he has a citizenship. So generally speaking, if I have to start with a definition, okay, if I have to start with a definition, it can mean to be, a general definition means just a membership. Membership of what? Membership of a political community. Membership of political community or of state. Okay. Now, what is this particular membership providing, these people? What is this membership giving these people? This particular membership is providing them with specific rights. It's providing them with specific rights, and also they have certain duties. So if I have to say from the aspects of a definition of who is a citizen, so citizen is a person, or is a person in a state. So citizen becomes a person in state who has full civic and political rights. He has full membership of a political community. He is he has a legal status which will be determined by the kind of rights and duties that he has. So citizen can be a person in a state, or is a person in a state who has full civil and political rights, okay. He has a membership of this particular political community, means he has certain specific rights and he has certain duties. So there are certain advantages, okay. There are advantages which comes with the idea of citizenship. So there are few fundamental rights only available to citizens, okay. Say for example, article 15 is there, article 16 is there, article 20 is there. So particularly the citizens have more advantages or more rights than non-citizens. Uske alawa, it is only citizens who can have positions of high rank, like they can run for an election of the president. Only the citizen, okay, they can be the president, they can be the vice president, or a governor, or they can be judges of the Supreme Court or High Courts, Attorney General, Advocate General of State. So जो कि लोगों के पास right to vote होगा, so their voting rights. So it is citizens who will be able to elect MPs and elect MLAs. Okay, it is only citizens. So along with certain rights, there are certain duties also. So the fundamental duties which are mentioned, under part 4A. So these duties which are mentioned under article 51A, ये सारी duties जो हैं, they are only for the citizens of India. Okay. Now,
how do we, have provisions in our constitution about citizenship, or what is the matter when it comes to citizenship? So these provisions are provided under part 2. Okay, these provisions are provided under part 2, and article 5 to 11, article 5 to 11 deal with these kind of provisions. So but when we say citizenship, or what kind of provisions, or what kind of citizenship, we say key part 2, these particular articles, they are speaking of citizenship, citizenship of India when at the commencement, मतलब जब constitution commence हुआ, at the commencement of the constitution, means on or from at the time of 26 January 1950. So why did they make these provisions of citizenship? Because at that time, partition had taken place. The partition of the country, in order to, keep in view partition of the country, so that there is no problem of migration, ताकि migration की जो problem है, no problem of migration or the problems faced by migrants can be reduced. तो इसलिए उस टाइम एक टेम्पररी प्रोविजन बनाई गई थी with regard to how citizenship of India will be granted to people who are coming from Pakistan, or people who went to Pakistan from India and then they came back. So after that, after these provisions, we have another law which deals with the concept of citizenship, which was made subsequent. So part 2, article 5 to 11, the idea of citizenship is it deals with law relating to citizenship at the commencement of the constitution. So part 2 deals with citizenship, or this is a citizenship law which deals with these articles, deals with at the commencement of constitution, that is at the time of 26 January 1950. दूसरा जो लॉ है बाद में, जो कि अब फिर which law will deal with the concept of citizenship subsequent to the commencement of constitution, there is a Citizenship Act. There is a Citizenship Act from 1955. With this deals with subsequent to commencement. Subsequent to commencement of constitution. Okay, so we know that citizens have certain fundamental rights which are only available to them, certain political rights which are only available to them, means they can contest elections also, they can vote for their person of choice who will go and represent them in the legislature. They can hold high offices like the president, governor, judges of the Supreme Court, High Court, advocate general, or attorney general. So these all particular things, or these premium rights, are only given to the citizens of the country. Okay, now when we move forward with this, so before we come to Article 5, there is a concept that citizens are always distinguished from aliens or foreigners. Okay, so who is a foreigner or who is an alien? So we say कि ये alien वो होगा या foreigner वो होगा who is not a citizen of India, who is not a citizen of India. Okay, who is not a citizen of India. So that person might be called as a foreigner, or might be known as an alien. So this provision is provided particularly in the Act of 1946. एक Foreigners Act है 1946 का, उसके अंदर term foreigner को define किया गया है, although the word alien is not used. So it is there where you can say that it is mentioned, what is the meaning of the term foreigner. तो वो कोई ज्यादा हाई-फाई डेफिनेशन प्रोवाइड नहीं करता, बस ये बोलता है कि somebody who is not a citizen is known as the
foreigner. So definition is provided under the Foreigners Act of 1946. तो वो बोलता है कि a person who is not citizen of India, who's not citizen of India, okay, that person will be a alien, or that person will be a foreigner. So now these aliens, when we have to say aliens या foreigners, दो तरह के हो सकते हैं. They can be friendly or they can be enemy. Okay, so friendly or enemy का मतलब हुआ, और generally they can be resident or non-resident also, but we are only concerned with resident aliens who are present in the country, and we are talking about providing them any kind of rights. So do they have citizenship rights or not? So from that aspect we will be only speaking of those resident aliens only. तो हम उन्हीं की बात कर रहे हैं, मतलब which are in the territory of the country, and some kind of temporary membership they have. They are in the country and they have certain temporary title, और उनको जैसे कुछ rights मिल गए, जैसे right to equality 14 में मिल गया, right to life मिल गया, but उनको जो fundamental right है article 19 में, the fundamental freedoms, that they do not have. So all the fundamental rights जिनके अंदर word citizen use होता है, वो aliens को या बाहर से foreigner जो कोई इंडिया में घूमने आया है उसको नहीं मिलेगा. Okay, so we can say कि they are on a lower level, they stand on a lower level in the terms of legal rights. तो वो कुछ प्रोटेक्शन क्लेम कर सकते हैं लॉ से या गवर्नमेंट से, बट दे डू नॉट हैव other membership which are only exclusively given to the citizens. अब फ्रेंडली और एनिमी एलियंस क्या होता है कि भाई फ्रेंडली एलियंस मतलब, अब इसको तो सिंपल ऐसा बोला है कि फ्रेंडली एलियंस आर दोज हु आर नॉट एनिमीज. तो एनिमी कौन हुआ? तो जनरली एनिमी एलियन इज अ पर्सन हु is a subject of state जो कि है at war with India, जो कि है at war with India. Okay, war. So any state that is at war with India becomes a enemy alien. तो अगर वो enemy नहीं है तो मतलब वो friendly alien होगा. ठीक है, और अगर for एग्जाम्पल अगर कोई इंडियन सब्जेक्ट है, वो जाके वॉलंटरली किसी एनिमी कंट्री में रह रहा है या फिर उनके साथ ट्रेड कर रहा है, सो दैट पर्सन कैन आल्सो बिकम अ एनिमी एलियन. ओके, सो एनिमी एलियंस जो होते हैं उनको पॉलिटिकल राइट्स जो है नहीं मिल सकते. अब फ्रेंडली एलियन अगर कोई इंडिया में है, कोई फ्रेंडली एलियन इंडिया तो उसको सिविल राइट्स मिल सकते हैं, बट पॉलिटिकल राइट्स उसको नहीं मिल सकते. अब कौन से सिविल राइट्स मिल सकते हैं भाई? उसको जैसे आर्टिकल 20 के राइट्स मिल सकते हैं, आर्टिकल 22 के राइट्स मिल सकते हैं, आर्टिकल 14 के राइट मिल सकते हैं. तो ये चीजें एलियंस को भी अवेलेबल है. नाउ कमिंग टू द provisions which are there in the constitution. Now coming to rather I would say coming to article 5, or technically we'll try to understand the provisions from article 5 to 11. See, अब पार्टीशन के टाइम क्या हुआ ना कि जो लोग थे वो इंडिया में भी रह रहे थे, ठीक है, और बहुत सारे लोग पाकिस्तान से आए थे. So people had come from Pakistan to India at the time of partition. Okay, तो और बहुत सारे लोग जो थे वो अब्रॉड में भी रह रहे थे, लिविंग इन अब्रॉड. ठीक है, तो अब कुछ तरीकों से अब इनको कैसे सिटीजनशिप दी जाए. सो इट वाज ट्राई टू टैकल दिस सिचुएशन. तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये प्रोविजंस डाली गई थी. तो इन्होंने कैसे ये प्रोविजंस डाली? तो एट द कमेंसमेंट व्हेन कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड, एट द कमेंसमेंट, दैट इज 26 जनवरी 1950, कि इंडिया में मतलब ये जो लोग जो पाकिस्तान से आए हैं या जो बाहर रह रहे हैं वो कैसे कैसे इंडिया का सिटीजन बन सकता है. 3 तरीके से बन सकता है. 3 provisions are provided: by domicile, by migration, by domicile,
by domicile, by migration and by registration. Okay. सो जनरली स्पीकिंग जब हम डोमिसाइल की बात करते हैं हम आर्टिकल 5 की बात करते हैं, जब हम माइग्रेशन की बात करते हैं हम आर्टिकल 6 की बात करते हैं और आर्टिकल 7 की भी बात कर लेते हैं कभी कभी। ठीक, सो जनरली हम ये उन लोगों की बात कर रहे हैं जो पाकिस्तान से इंडिया आए थे। इसके अंदर वो भी लोग हम कह सकते हैं जो पहले पाकिस्तान चले गए लेकिन फिर बाद में उनको सही नहीं लगा तो दे केम बैक टू इंडिया। सो बोथ आर्टिकल 6 and 7 कैन बी पुट अंडर दिस पर्टिकुलर हेड। रजिस्ट्रेशन की बात हम करते हैं जो लिविंग अब्रॉड है, पीपल हु आर लिविंग अब्रॉड। सो आर्टिकल 8 वी आर स्पीकिंग ऑफ, सो फॉर इंडियंस लिविंग अब्रॉड, so Indians living abroad. Now let's come to article 5 सबसे पहले। Okay, we will be covering this chapter, the concept of citizenship in 2 classes. तो आज मैं सिर्फ आपको constitution के provisions ही करवाऊंगी। In the next class we will be in detail, more about the Citizenship Act of 1955. Okay, अब citizenship by domicile क्या है? Let's speak of article 5. Okay, let's speak of article 5 by domicile. अब इसका टाइटल जो है वो डोमिसाइल नहीं है। ओके, इसका टाइटल जो है, इसका टाइटल कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ही है इसका टाइटल, बट इसके अंदर थ्रू डोमिसाइल की प्रोविजन प्रोवाइडेड है। देयर इज अ वर्ड आल्सो मेंशन्ड डोमिसाइल। तो जो फर्स्ट लाइन है आर्टिकल 5 की वो रीड करती है एट द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब एट जब कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस होता है फ्रॉम 26 जनवरी एट द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो 26 जनवरी को कौन लोग इंडिया के सिटीजन्स होंगे? हर कोई पर्सन हु हैज डोमिसाइल इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो ये कहता है 26 जनवरी को कौन लोग इंडिया के 26 जनवरी को कौन लोग सिटीजन्स होंगे इंडिया के? तो ये कहता है ऑल पर्सन्स जिनके पास डोमिसाइल है, जिनके पास डोमिसाइल है, डोमिसाइल CILE, डोमिसाइल इन इंडियन टेरिटरी। इंडियन टेरिटरी, अब वो तो अंग्रेज भी हो सकते हैं, वो तो कोई और भी हो सकता है, कुछ कोई भी बंदा हो सकता है जो इंडियन टेरिटरी में। ये तो बड़ा अजीब सा रूल हो गया। तो सिर्फ इतना नहीं है, द प्रोविजन इज एंड, ठीक है, यहाँ पे एंड है वो, एंड कोई भी एक क्लॉज कि भाई ये डोमिसाइल्ड है। डोमिसाइल का मतलब क्या हुआ? मतलब वो परमानेंट एड्रेस, उसका परमानेंट रेजिडेंसी, परमानेंट एड्रेस और परमानेंट रेजिडेंट, और वो चाहता भी नहीं आगे उस जगह को बदलना, वो परमानेंटली यहीं पे रहना चाहता है। तो मतलब उसका परमानेंट एड्रेस, परमानेंट रेजिडेंट वो इंडियन टेरिटरी का है, और के अलावा वहां पे परमानेंटली रह भी रहा है, तो या तो वो वहां पे बॉर्न हुआ था, या तो दिस पर्सन प्लस ही और शी वाज बॉर्न इन इंडिया, या फिर उसके पेरेंट्स वो बॉर्न इन इंडिया, या फिर ordinarily he is resident of India immediately, मतलब ordinarily resident of India preceding 5 years of commencement। मतलब कि भाई 26 जनवरी को कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस हुआ और वो ऑर्डिनरीली पिछले 5 साल से, पिछले प्रीवियस 5 इयर्स से वो इंडिया का रेजिडेंट है। तो मतलब वो 1945 से ऑर्डिनरीली 5 साल से अगर 1945 से इंडिया में रह रहा है कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस होने के पहले से, एंड उसका परमानेंट डोमिसाइल, परमानेंट रेजिडेंस, परमानेंट रेजिडेंसी इंडिया में है, और 5 साल से, पिछले 5 साल से ऑर्डिनरी रेजिडेंट है इंडिया का, यहीं पे रह रहा है, तो हम ये उसको सिटीजनशिप दे सकते हैं एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब ये तीनों होनी जरूरी नहीं है, दीज आर द प्रोविजंस व्हिच हैज प्रोविजन ऑफ और in it। ठीक है, so these are 3 clauses, sub clause A, sub clause B and sub clause C। this is particularly speaking of the first clause, और I would rather say एक ही क्लॉज है, इसके अंदर तो 1 नंबर भी दिया नहीं हुआ,
तो ये सीधा ही बोलता है सिटीजनशिप एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ऑल पर्सन्स हु आर डोमिसाइल ऑफ इंडिया एंड या तो वो इंडिया में बॉर्न हुए थे, तो इसके साथ एक और रिक्वायरमेंट इनमें से कोई एक अगर वो फुलफिल कर देता है तो मतलब उसको इंडिया की सिटीजनशिप प्रोवाइड कर दी जाएगी, वो ये माना जाएगा कि वो इंडिया का सिटीजन है। अब इसके अंदर टेरिटरी का मतलब क्या हुआ भाई? टेरिटरी का मतलब जो है, टेरिटरी का मतलब है भी जो भी टेरिटरी, ओके व्हाट इज टेरिटरी? टेरिटरी का मतलब है कि आर्टिकल 1 क्लॉज 3 में कमेंसमेंट के टाइम जो टेरिटरी वो ही मतलब इसके अंदर इंडियन टेरिटरी का है। इट इज मीनिंग टेरिटरी ऑफ इंडिया एज डिफाइंड अंडर आर्टिकल 1 सब क्लॉज 3 एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, फाइन। अब व्हाट डू यू मीन बाय डोमिसाइल? डोमिसाइल का मतलब क्या है? क्या मतलब है कि भाई आप किसी पर्टिकुलर जगह के डोमिसाइल्ड हो, या फिर हमने तो इसको परमानेंट रेजिडेंस बोल दिया, बट एक्चुअली में डोमिसाइल वर्ड जो है इट इज नॉट डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। डोमिसाइल को कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन किया हुआ। ऑर्डिनरी स्पीकिंग इसका मतलब होता है किसी का प्लेस जहाँ पे वो रहना चाहता है विद इंटेंशन टू रिमेन देयर परमानेंटली। सो डोमिसाइल का मतलब है his home or residence जहां पे he is residing, मतलब he is staying plus intention to stay, permanently, plus intention to stay permanently. Now okay, just give me a moment. मतलब डोमिसाइल का मतलब है कि दिस पर्सन इज स्टेइंग देयर एंड ही हैज इंटेंशन टू स्टे देयर परमानेंटली, ठीक है, और कि भाई अपने आप को वहां से रिमूव करने की कोई इंटेंशन नहीं रखता। तो हम कह सकते हैं दिस इज अ प्लेस विच अ पर्सन फिक्सेस एज हिज हैबिटेशन, अपने खुद के लिए, अपनी फैमिली के लिए, किसी थोड़े से या टेम्पररी पर्पस के लिए नहीं, बट विद अ प्रेजेंट इंटेंशन कि भाई मेरा ये परमानेंट घर होगा, अब मैं यहीं पे हमेशा के लिए रहूंगा। ठीक है, तो अब इस चीज के अंदर जब व्हेन वी आर स्पीकिंग ऑफ डोमिसाइल, तो अब इंडिविजुअल और टेरिटरी के बीच में जो रिलेशनशिप है, ठीक है, तो लीगल रिलेशनशिप है जो कि इंडिविजुअल एंड टेरिटरी के साथ है। ओके, अब वो जो है वो कैसे देखी जा सकती है कि भाई उसका क्या रिलेशन है इस पर्टिकुलर टेरिटरी के साथ? दैट कैन बी अ फैक्टर व्हिच विल हेल्प अस इन अंडरस्टैंडिंग कि क्या ये यहाँ का परमानेंट हैबिटेंट है या ये यहाँ का परमानेंट रेजिडेंट है। अब डोमिसाइल जो है इट इज नॉट प्लेस ऑफ बर्थ। समटाइम्स आपका प्लेस ऑफ बर्थ आपका डोमिसाइल हो सकता है, बट हमेशा हो ये जरूरी नहीं है। ओके, place of birth can be a domicile in few cases, but these are not synonyms. They are not synonyms. Okay, they are not synonyms to each other. They are not synonymous expressions. अब domicile का मतलब residence नहीं होता, ठीक है? क्यों? क्योंकि सिर्फ रेजिडेंस भी नहीं होता, परमानेंट रेजिडेंस। परमानेंट का मतलब है इंटेंशन टू स्टे देयर परमानेंटली, एंड रेजिडेंस मतलब फैक्ट है वहां पे अभी रह रहा है। तो जनरली हम कह सकते हैं कि डोमिसाइल के अंदर दो एलिमेंट्स होंगे, एक्चुअल रेजिडेंस और प्रेजेंट इंटेंशन, ठीक है, प्रेजेंट इंटेंशन टू रिमेन permanently. Okay, there is one case, और ये दोनों coexistence मतलब होना चाहिए, they should constitute the existence of actual residency and permanent intention to remain there. They should happen, they must be both of them. तो factum और animus, इसको आप factum कह सकते हो, fact of residence। तो factum और animus जो है आपका
वो दोनों एक साथ आपके प्रोवाइड होने चाहिए। अब जो ये आपकी इंटेंशन है भाई कि तुमको यहाँ पे हमेशा रहना है नहीं रहना, अब तुम वो कैसे प्रूव करोगे? आप एक्सप्रेसली प्रूव कर दो, या फिर आपके कॉन्डक्ट से भी ये चीज पता की जा सकती है। कॉन्डक्ट मतलब बाकी सारे भी जो सर्कमस्टांसेस है जिसमें आप अपने आप को मतलब पोर्ट्रे कर रहे हो, या आपका वे ऑफ लाइफ जो है उसके हिसाब से। So this particular case deals with, how do you infer your intention of staying somewhere permanently. So Michael का एक केस है, Michael versus State of Bombay. Michael versus State of Bombay का जो केस है, this deals with how do you find out or how do you recognize somebody's intention to stay somewhere permanently. तो जो माइकल है इस केस के अंदर, how it becomes important कि ये एक बंदा था, this person Michael, he was born in Goa, ठीक है, गोवा में पैदा हुआ 1918 में गोवन पेरेंट्स को। सबसे बड़ी बात, जो गोवा था वो ब्रिटिश रूल के अंडर नहीं आता था, ठीक है, इट वाज नॉट अ ब्रिटिश कॉलोनी। ओके, उसके बाद ये बड़ा हो जाता है 9 इयर्स का होके, एट द एज ऑफ 9 इयर्स, मतलब कब हुआ ये 9 साल का? 1927 में। 1927 में 9 साल का होके ये बॉम्बे आ जाता है, ठीक है, he comes to Bombay. Then अपनी स्कूलिंग ये वहां पे करता है, बॉम्बे में स्कूलिंग करता है, स्कूलिंग इन बॉम्बे, और 1936 में 1936 तक अपनी स्कूल खत्म कर देता है। फिर स्टार्ट्स फादर्स बिजनेस इन बॉम्बे, ठीक है, तो बॉम्बे में ही है ये, 1945 तक बॉम्बे में ही है, ठीक है, 1945। फिर 1946 में ये joins रॉयल इंडियन एयरफोर्स, रॉयल इंडियन फोर्स, ओके, ही जॉइंस रॉयल इंडियन फोर्स 1946 के अंदर। उसके बाद ये अपनी 1942 में ये ज्वाइन करता है, और यहाँ पे ये 1941 आई एम सो सॉरी 1942 में ये ज्वाइन करता है, 1946 में ये यहाँ से डिस्चार्ज हो जाता है, ठीक है, इस अपनी नौकरी से डिस्चार्ज फ्रॉम द फोर्स, ठीक है। अब जब ये डिस्चार्ज सर्टिफिकेट इसको मिलता है, तो या फिर जो ये डिस्चार्ज सर्टिफिकेट जो है, इस नौकरी से डिस्चार्ज हुआ, इसमें जो डिस्चार्ज सर्टिफिकेट दिया हुआ है उसमें इसका परमानेंट एड्रेस जो है इज ऑफ बॉम्बे, ठीक है, गोवा से अभी इसका कोई लेना देना नहीं है, इसका परमानेंट एड्रेस बॉम्बे है, कि भाई मेरे को सारी नेसेसरी फॉर ऑल नेसेसरी कम्युनिकेशन आप मुझे इस एड्रेस के ऊपर बात करिए, बताइए। उसके अलावा ये अपने पापा का बिजनेस भी वहां पे साथ साथ चलाए जा रहे हैं। बॉम्बे म्युनिसिपल रोल्स में इसका वोटर के तौर पे भी नाम है, ठीक है, हिज नेम ऑन म्युनिसिपल रोल्स ऑफ बॉम्बे एज वोटर, ठीक है। तो अब ये सारे फैक्ट्स ये कहते हैं कि भाई इसने सिविल फ्रेंचाइजी उस सिटी की एंजॉय करी है, तो ये इट वाज हेल्ड बाय द कोर्ट, इट वाज हेल्ड बाय द बॉम्बे कोर्ट। तो ये बॉम्बे का केस है, ये सुप्रीम कोर्ट का केस नहीं है, द बॉम्बे कोर्ट। तो बॉम्बे कोर्ट ने ये बोला है कि दिस पर्सन इज हैविंग हिज डोमिसाइल इन बॉम्बे। एक दूसरा केस भी है मोहम्मद रजा वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे का। अब मोहम्मद रजा वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे की कहानी क्या है, लेट्स talk about that case now. 1966, Mohammad Raza versus State of Bombay, 1966, Mohammad Raza versus State of Bombay, ठीक है, ओके। तो ये जो बंदा था ये इंडिया आता है 1938 में, 1938 comes to India, ठीक है, till 1945,
तो 1938 से 1945 तक ये इंडिया रहता है। उसके बाद ये इराक चला गया, ठीक है, इराक चला गया 1945 में। मैं कहीं पिलग्रिमेज पे जा रहा हूँ, पिलग्रिमेज पे। Now after that this person goes on a pilgrimage 1 साल के लिए, ठीक है। वापस आने के बाद, ठीक है, वापस आने के बाद मतलब 1946 में, 1945 से 1946 तक 1 साल तक ये पिलग्रिमेज के लिए चला गया इराक। अब जब ये वापस आता है, रिटर्न, जब इसका रिटर्न होता है, ही रजिस्टर्स एज फॉरेनर, ठीक है, और टेक्स जॉब इन होटल। अपने आप को फॉरेनर बताता है, अपने आप को रजिस्टर करवाता है फॉरेनर, ऐसे झूठा मोटा भी नहीं रह रहा होता, और एक होटल में जॉब ले लेता है कैशियर, ठीक है, अच्छा भला काम कर रहा है, ठीक है। और धीरे धीरे कई बार ये ऐसे इंडिया में रहा और अपना स्टे एक्सटेंड करवाता रहा, ठीक है। उसके बाद अब कभी जा रहा है कभी आ रहा है, अपने आप को फॉरेनर भी बता रहा है, तो इसका समझ नहीं आ रहा कि भाई इसको यहाँ पे परमानेंटली रहना है कि नहीं रहना, ठीक है। बार बार ये अपनी जो स्टे की रिक्वेस्ट है उसको एक्सटेंड कराया जा रहा है। अब है तो फॉरेनर, अब इसको तो लिमिटेड टाइम के लिए इंडिया में रखा जाएगा। तो 1956 तक तो सब सही था, ठीक है, 1946 से 56 10 साल तक इसकी स्टे एक्सटेंड होती रही। बट इन 1957 उसका जो स्टे ऑर्डर था, स्टे ऑर्डर है, स्टेइंग इन इंडिया रिक्वेस्ट, जो उसका वो है एक्सटेंशन ऑफ स्टे, एक्सटेंशन ऑफ स्टे इन इंडिया, इसको रिफ्यूज कर दिया, ठीक है। क्यों? कि भाई इसका जो है माइंड जो है बार बार बदले जा रहा है, इसका कोई भी इंटेंशन नहीं दिख रहा है इसकी हरकतों से कि ये इंडिया को अपना परमानेंट होम बनाना चाहता है। तो इसकी जो एप्लीकेशन है, इसीलिए बारी बारी ये अपनी एप्लीकेशन को एक्सटेंड करे जा रहा है। तो मतलब दिस पर्सन इज नॉट एबल टू मेक हिज माइंड। तो अब हम कह सकते हैं कि क्या यहाँ पे इसको परमानेंट इंटेंशन है इंडिया में रहने का, तो क्या इसका डोमिसाइल हुआ? तो नहीं, इसका डोमिसाइल नहीं हुआ, ठीक है। So at the commencement of constitution, this person will not be seen as having, a domicile of India. Reason being, he has no intention to make India his permanent home. इसकी जो application है वो जो है अब forfeit कर दी जाएगी, and this is now the conclusion. Okay. अब generally speaking जो आपके domicile होते हैं वो कितनी तरह के हो सकते हैं? उसके एसेंशियल्स क्या है? फैक्टम एनिमस 2 एसेंशियल्स है, फैक्ट भी होना चाहिए और वहां पे परमानेंट इंटेंशन भी होनी चाहिए। नाउ व्हाट कैन बी द काइंड्स ऑफ डोमिसाइल? व्हाट कैन बी द काइंड्स ऑफ डोमिसाइल? अब जनरली स्पीकिंग डोमिसाइल जो है वो 2 तरह के होते हैं, ऑफ ओरिजिन, डोमिसाइल ऑफ ओरिजिन, डोमिसाइल ऑफ चॉइस। सुप्रीम कोर्ट ने 3 तरह के माने हैं। उन्होंने added domicile by operation of law also. Domicile by operation of law also, ठीक है। अब ये जो डोमिसाइल बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ और सुप्रीम कोर्ट ने जो 3 तरह के माने हैं, वो जो केस है जो ये बोलता है कि देयर आर 3 काइंड्स ऑफ डोमिसाइल। द केसेस सौंदर गोपाल वर्सेस सौंदर रजनी, ठीक है। Sundar Gopal versus Sundar Rajni is a case from 2013 which speaks about 3 kinds of domicile, which can be of origin, which can be of choice, which can be by operation of law. अपने आप मतलब अगर domicile की provisions law ने बदल दी और वहां पे फिर किसी को कोई domicile provide किया गया, तो that is by operation of law. अपनी मर्जी से मतलब अपने आप से कुछ नहीं हो रहा, it is through law. Okay, now what is domicile by choice or domicile by origin? Let's have a look at these things. डोमिसाइल ऑफ ओरिजिन क्या है? वो उसको मिलता है जब वो पैदा होता है, ओके, ओरिजिन, ओके, एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ। तो कौन सा डोमिसाइल? तो डोमिसाइल ऑफ ओरिजिन हुआ which he or she receives at time of his birth. कैसे रिसीव होगा? 2 तरीके से हो सकता है, ओके। अब जब किसी बच्चे का बर्थ होगा हम उसको 2 प्लेसेस पे बाइफरकेट कर सकते हैं। ईदर दैट पर्सन विल बी illegitimate
or that person will be legitimate. Legitimate child मतलब born out of a valid wedlock. Illegitimate child मतलब born out of no wedlock. Okay, so अगर कोई legitimate बच्चा है, ठीक है, domicile of origin of every person of legitimate birth, वो कौन सी place होगी? The place will be जहां पे उसका father, place of father domicile. So in case of legitimate children, उस legitimate baby का domicile will be the place where his father is domiciled. In case if the kid is illegitimate, for example, so domicile by origin of a child who is illegitimate will be place of mother's domicile. Okay, तो origin के basis के ऊपर it is decided through father and it is decided through mother. तो ये जो है ये एक concept of law है. Domicile of origin, domicile of origin एक concept of law है. And जब तक आप इसको abandon नहीं कर दो और आप खुद से कोई और जगह अपनी domicile choose नहीं कर लेते, ये आपके साथ चिपका रहेगा. So this is a concept of law and it stays till you change it. Stays till you change it. Okay. Now, what about domicile of choice? When a person is of full age, when a person is of capacity, when a person is of major, okay, he's competent enough to think about himself. So, तब वो अपने हिसाब से अपना domicile of origin को abandon करके he can, acquire a domicile of choice. So, so domicile of choice means कि भाई person जो है वो full capacity का होना चाहिए. Person of full age मतलब major, full age, whatever the law requires, full age and capacity. Capacity मतलब he is able to understand it, consent है, समझ आ रहा है, incompetent नहीं है, insane नहीं है. Okay, whatever. He can acquire a domicile of choice. ये full age capacity है plus abandons original domicile. ठीक है, अब ये कैसे कर सकता है इसको acquire domicile of choice? How can this be acquired? Acquired how? कि भाई he will move from the place of his residence to another place. ठीक है, he will settle there और वो permanent रखेगा intention कि वहां पे उसको हमेशा के लिए settle हो जाना है. Okay, so that is what is domicile of choice. So कैसे कर सकता है ये? Moving from place of residence to another place, वहां पे settle down सिर्फ ऐसे ही थोड़े दिनों के लिए रह लिया नहीं, settles down there with intention. Okay, settle down with intention to stay permanently. इंटेंशन टू स्टे परमानेंटली. अब भाई ये सच में परमानेंटली वहां रह रहा है या नहीं रह रहा है, या उसने अपना डोमिसाइल ऑफ ओरिजिन चेंज कर लिया है, वो सारा ओनर्स, वो बर्डन ऑफ प्रूफ इस बंदे के ऊपर है. ओके, सो द ओनर्स ऑफ प्रूफ कि भाई ही हैज चेंज्ड हिज डोमिसाइल ऑफ ओरिजिन लाइज ऑन हिम. अब ये कैसे हम डिसाइड करेंगे? इट विल डिपेंड अपॉन हिज कॉन्डक्ट. फॉर दिस पर्पस उसका क्या कॉन्डक्ट रहा है मटेरियल टाइम से पहले, उसके बाद कैसे कैसे उसने रहा. जैसे वो माइकल वाले केस में था कि भाई उसने वहीं पे अपना डिस्चार्ज सर्टिफिकेट भी बनाया और सब कुछ कम्युनिकेशंस के लिए उसको यूज किया. तो वी कैन से कि भाई अब ये एक ही एड्रेस दे रहा है तो मतलब ये यहाँ से कहीं जाएगा नहीं, इसकी इतनी पूरी इंटेंशन है कि आगे आप मुझको यहाँ पे ढूंढ सकते हो. सो दैट इज व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिसाइल. ओके, अब इंडिया में स्टेट डोमिसाइल भी हो सकते हैं. तो कि ऐसा पॉसिबल है कि भाई पर्सन कैन हैव अ सेपरेट स्टेट डोमिसाइल इन इंडिया. ठीक है, तो
जैसे इंडिया इन पीपल आर इंडियन ऑल्सो एंड दे माइट बी डोमिसाइल्ड इन वन पर्टिकुलर स्टेट ऑफ द कंट्री, ओके, और वहां का डोमिसाइल सर्टिफिकेट बहुत सारे लोगों ने ऐसे लिया भी होता है। अब वी कम टू आर्टिकल 6, ठीक है। तो डोमिसाइल हुआ, परमानेंट रेजिडेंसी प्लस एन इंटेंशन टू ऑलवेज स्टे देयर। उसके अलावा या तो वो यहाँ पे पैदा हुआ था, या फिर उसके पेरेंट्स पैदा हुए थे, या फिर वो कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के 5 साल पहले से 1945 से वहां पे रह रहा था। अगर डोमिसाइल के साथ इनमें से कोई भी एक प्रोविजन आपकी फुलफिल होती है तो यू कैन गेट अ सिटीजनशिप ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एज पर आर्टिकल 5 of the Indian Constitution. Let's come to Article 6 now. This is citizenship by migration. Article 6 by migration. अब इसके अंदर माइग्रेशन वर्ड यूज नहीं है, persons who have migrated to India from Pakistan. So migration, इधर से उधर जो लोग गए उनकी बात नहीं है, जो उधर से इधर आए. So पाकिस्तान टू इंडिया, ओके. Partition का टाइम था, people were moving from here and there, they were wanting to settle here in the country because they're known कि भाई यहाँ पे दूसरी country बन रही है, it might be better for them to stay here. So people were coming and they had started coming, you know, to this particular country. तो पार्टीशन के टाइम पे you know people residing in Pakistan and they were migrating you know to Indian territory, उनको अपने आप से ही आप इंडियन सिटीजन्स को कंसिडर नहीं कर सकते थे. they could not be registered or they could not be regarded as Indian citizens under provisions of Article 5, क्योंकि अब जो था टेरिटरी सेपरेट हो गई थी, वो लोग डोमिसाइल नहीं माना जाता था, अब वो they were domiciled of Pakistan territory, ओके. तो फिर स्पेशल प्रोविजंस बनानी पड़ी और स्पेशल प्रोविजंस आर्टिकल 6 और 7 के अंदर बताई गई है, ओके. अब ये किन के ऊपर एप्लीकेबल है? आर्टिकल 6 जो है इज एप्लीकेबल, सबसे पहले एप्लीकेबल ऑन पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन. पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन मतलब जो कि बॉर्न हुए थे, बॉर्न विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया. कौन सी टेरिटरी? जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अंदर थी. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की जो टेरिटरी थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की जो टेरिटरी ऑफ इंडिया थी, अगर वो उधर कहीं पे पैदा हुए थे या फिर उनके पेरेंट्स बॉर्न हुए थे या फिर उनके ग्रैंड पेरेंट्स उस टेरिटरी में बॉर्न हुए थे, ठीक है. तो ये इनमें से ऐसा कोई भी पर्सन जो कि इंडियन ओरिजिन का है, वो अगर पाकिस्तान से इंडिया आ रहा है तो वो इंडियन सिटीजनशिप को एक्वायर कर सकता था. और वो कैसे एक्वायर कर सकता था? आर्टिकल 6 की प्रोविजंस से. तो आर्टिकल 6 ने जो लोग पाकिस्तान से इंडिया आ रहे थे उनको 2 कैटेगरीज में डिफाइन कर दिया, प्रोवाइडेड कि वो पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन हो. Okay. आर्टिकल 6 जो है, जो लोग पाकिस्तान से इंडिया आ रहे थे, इंडिया माइग्रेशन, आर्टिकल 6 उनको 2 कैटेगरीज में डिवाइड करता है. कैसे? जो इंडिया आए, हु केम टू इंडिया बिफोर 19 जुलाई 1948 और हु केम आफ्टर. तो बिफोर एंड आफ्टर, इसको मैं पूरा ही लिख देती हूँ. केम came before, came after 19 July 1948, ठीक है. अब जो 19 जुलाई 1948 से पहले आए उनसे हमें कुछ नहीं देना, ठीक है. कि अब बिफोर 19 जुलाई 1948 वाले लोगों का क्या चक्कर है कि भाई अगर कोई इंडियन ओरिजिन का पर्सन
उसको इंडिया का सिटीजन माना जाएगा, शैल बी डीम्ड टू बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर वो पाकिस्तान से इंडिया आया है 19 जुलाई 1948 19 जुलाई 1948 से, अगर वो 19 जुलाई 1948 से पहले इंडिया आया है तो उसको इंडिया का सिटीजन प्रिज्यूम कर लिया जाएगा, विल बी डीम्ड। और जब से वो आया है, ठीक है, प्लस उसको प्रिज्यूम कर लिया जाएगा, प्लस ही हैज बीन ऑर्डिनरीली रेजिडेंट इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया सिंस हिज माइग्रेशन, मतलब जब से वो आया है तब से वो यहीं पे रह रहा है। अगर वो ये चीज प्रूव हो जाए, हैज बीन ऑर्डिनरीली रेजिडेंट, मतलब ऐसा बार बार हो सकता है इधर उधर किसी काम से गया हो, बट ऑर्डिनरीली वो वहीं पे रह रहा है, ठीक है। तो केम इंडिया बिफोर 19 जुलाई 1948 and ordinarily residing since then, तो फिर दिस पर्सन विल गेट अ डीम्ड सिटीजनशिप। मतलब कुछ ज्यादा मेहनत नहीं करनी, तो भाई जो 19 जुलाई 1948 तक आ गए उनको तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये 19 जुलाई 1948 डेट क्या है भाई, इस दिन के बाद आने वाले लोगों को परमिट की रिक्वायरमेंट थी, परमिट रूल आ गया था 19 जुलाई 1948 से, ठीक है। अब ऑन और आफ्टर का मतलब है बिफोर, तो मतलब जो 19 को आया उसको भी, इसका मतलब है, इसकी इंटरप्रिटेशन है ऑन और आफ्टर। तो 19 जुलाई 1948 को आपका लग गया परमिट रूल, ओके। तो अगर कोई भी पर्सन इंडिया आता है पाकिस्तान से 19 जुलाई को 1948 या फिर 19 जुलाई 1948 के बाद, उसको सिर्फ तब ही इंडियन सिटीजनशिप या सिटीजन ऑफ इंडिया रजिस्टर किया जाएगा। वो कौन करेगा, वो कोई एक ऑफिसर करेगा जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपॉइंट किया है, और उसकी जो एप्लीकेशन है, हिज एप्लीकेशन कुड बी एक्सेप्टेड, मतलब उसकी एप्लीकेशन भी सिर्फ तभी एक्सेप्ट की जाएगी जब उसने 6 महीने इंडियन टेरिटरी में एज अ रेजिडेंट बिताए हैं, एप्लीकेशन देने से पहले। तो आते ही मतलब उसको सिटीजनशिप नहीं मिलेगी, वो आएगा 6 मंथ्स रिजाइड करेगा, उसके बाद he will make application, okay। 6 मंथ आएगा, he has come to India on, if he has come on 19 जुलाई या उसके बाद वो आया, 6 महीने उसने रिजाइड किया इंडियन टेरिटरी में आराम से, और फिर उसके बाद रिजाइड करने के बाद he will make an application proceeding और demanding for citizenship, okay। That is what is the provision of article 6 सब क्लॉज बी सब क्लॉज 2। तो ये जो प्रोविजन है वो बताता है आर्टिकल 6 बी 2, ओके। होप इट मेक्स दिस क्लियर, यस। अब आधे लोग पाकिस्तान से भी इंडिया आ रहे थे, बहुत सारे लोग ऐसे थे जो इंडिया से पाकिस्तान चले गए और फिर बाद में उनको सब सही नहीं लगा तो वो वापस आ गए, ओके। अब दूसरे तरह के माइग्रेंट्स हैं, आर्टिकल सॉरी दूसरे तरह के माइग्रेंट, अबे व्हाट इज योर प्रॉब्लम, take another wait, just give me a second, I'll take a new whiteboard now। other kind of people की जो अब इंडिया से पाकिस्तान गए but they did not like it somewhere somehow there, so they came back to India, okay। so उनके बारे में article 7 provisions are provided, just give me a moment।
तो मतलब जो आर्टिकल 7 कहता है कि भाई इफ यू नो हु कैन बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया वेदर बाय डोमिसाइल और बाय माइग्रेशन, अगर कोई इंडिया से पाकिस्तान चला जाएगा, ठीक है, तो वो इंडिया की सिटीजनशिप जो है वो सीज हो जाएगी, वो सिटीजनशिप उसकी खत्म हो जाएगी। तो ओके, आर्टिकल 7, व्हाट डज आर्टिकल 7 प्रोवाइड्स कि अगर कोई इंडियन सिटीजन है, सिटीजन will cease citizenship, will cease if somebody has migrated to Pakistan after 1st March 1947. ठीक है, ये बात कह रहा है, he will cease to be a Indian citizen. अब ये वापस आने की बात करता है कहां पे, अपने प्रोवाइजो में, कि भाई इधर से उधर चले गए, अब आपकी जो सिटीजनशिप है वो सीज हो जाएगी, ठीक है। Who has after the 1st day of March migrated from territory of India to territory now included in Pakistan shall not be a citizen of India. ठीक है, तू वहां पे चला गया, अब तेरी सिटीजनशिप खत्म हो गई। लेकिन एक एक्सेप्शन है इसके प्रोवाइजो में। What does the exception state? कि भाई if you have returned back, सुबह का भूला शाम को घर आ गया, returned back to India, तो अगर after having migrated to Pakistan, returned to the territory of India under permit लेके आना पड़ेगा, ऐसे नहीं आ सकता, under a permit, क्या permit? For resettlement, permit for resettlement or permanent returns की, सॉरी भाई मैं चला गया था, गलती हो गई, लेकिन अब मैं सच में आ गया हूँ, वहां पे तो बहुत बुरा हाल हो रहा है। ओके, परमानेंट रिटर्न टू इंडिया, और ये जो परमिट है ये कौन दे सकता है? कोई भी अथॉरिटी, कोई भी अथॉरिटी, ठीक है, ठीक है। ये जो अथॉरिटी है लॉ की तरफ से, उस टाइम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऐसी अथॉरिटीज बनाई थी, तो उन अथॉरिटीज से ये परमिट मिल जाएगी, एंड देन ही कुड बी रजिस्टर्ड, देन ही कुड बी रजिस्टर्ड एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया। अब जो ऐसे बंदे हैं जो पहले चले गए थे फिर वापस आ गए, उनको ये माना जाएगा दैट दे हैव माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया आफ्टर 19 जुलाई 1948, जो पहले वाले प्रोविजन में दी हुई थी। मतलब उनको एप्लीकेशन बनाना जरूरी है, उनको एप्लीकेशन बनाना जरूरी है, उस ऑफिसर अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एप्लीकेशन देना जरूरी है, और वो एप्लीकेशन वो सिर्फ तभी दे पाएंगे जब उन्होंने 6 महीने कंट्री में इमीडिएटली एप्लीकेशन देने पहले से रहा है। So on the registration they will be deemed to be citizens of India. ओके, तो सिमिलरली परमिट वगैरह, इसका मतलब है वापस आने के बाद ये माना जाएगा कि ये इंडिया में आए हैं 19 जुलाई 1948 के बाद, तो मतलब उनके ऊपर देन अप्लाई आर्टिकल 6, ठीक है, तो उसके प्रोविजंस भी इनके ऊपर लग जाएंगे। सो इन दिस मैनर जो आर्टिकल 6 and 7 है आपका, दे आर डीलिंग विद पीपल हु आर माइग्रेटिंग फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया एंड वाइस वर्सा। ओके, अब कमिंग टू द नेक्स्ट पर्टिकुलर प्रोविजन इज आर्टिकल 8, इसको हम बोलते हैं सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन। ओके, अब ये कौन से रजिस्ट्रेशन की बात है? ऑफ पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन, पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन जो कि बाहर रह रहे थे, रिजाइडिंग आउटसाइड, कोई डॉक्टर था, कोई इंजीनियर था, कोई पढ़ने गया हुआ था, ओके, कोई फ्रीडम फाइटर्स थे, वो बाहर से ही अपनी फ्रीडम स्ट्रगल की लड़ाई लड़ रहे थे, सो दे हु वर रिजाइडिंग आउटसाइड अनडिवाइडेड इंडिया। तो बाय रजिस्ट्रेशन किन के लिए? हु वर रिजाइडिंग आउटसाइड
ऑफ अनडिवाइडेड इंडिया। ठीक है, तो इंडियन ओरिजिन का मतलब क्या हुआ, तो ये बोलता है कि एक पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो कि रिजाइडिंग अब्रॉड है, रिजाइडिंग अब्रॉड कब, एट कमेंसमेंट, एट कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अगर कोई इंडियन ऐसा था जो बाहर रह रहा था, वो अपने आप को इंडियन सिटीजन बनने के लिए रजिस्टर कर सकता था। कैसे, एप्लीकेशन देगा, एप्लीकेशन देगा, एप्लीकेशन टू डिप्लोमेटिक या फिर काउंसलर रिप्रेजेंटेटिव को, उस कंट्री में जो इंडियन डिप्लोमेटिक का काउंसलर रिप्रेजेंटेटिव होगा उस टाइम रिजाइडिंग, उसको वो एप्लीकेशन वो दे देगा। ठीक है, अब ये जो एप्लीकेशन है वो कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंस होने से पहले भी दे सकता है। सच एन एप्लीकेशन कैन बी मेड बिफोर और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड वो एक मैनर है, वो फॉर्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रोवाइड करा हुआ है और उसको तुम फॉलो करके यू कैन मेक दिस एप्लीकेशन। तो इसका पर्पस ये हुआ कि जो आर्टिकल 8 है वो आपके ओवरसीज इंडियंस को कवर कर रहा है जिनके पास डोमिसाइल नहीं है। ठीक है, तो आर्टिकल 8 की रेलेवेंस क्या हुई, कवर्स ओवरसीज, ओवरसीज इंडियंस हैविंग नो डोमिसाइल, परमानेंटली नहीं रह रहे भाई, ये यहाँ पे बाहर रह रहे हैं, दे हैव नो डोमिसाइल इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इसके अंदर ये कमेंसमेंट पे भी बन सकते हैं और कमेंसमेंट के बाद भी बन सकते हैं। तो आर्टिकल 8 जो है अप्लाइज नॉट ओनली एट द कमेंसमेंट बट ऑल्सो आफ्टर द कमेंसमेंट। सो अप्लाइज एट कमेंसमेंट एंड subsequent to commencement। ठीक है, हाँ, coming to article 9, quickly speaking, only 3 articles left। article 9 ये इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बोलता है नो ड्यूअल सिटीजनशिप। ठीक है, ये कहता है कि अगर किसी पर्सन ने दूसरी कंट्री की सिटीजनशिप को वॉलंटरी एक्वायर किया है, उसको इंडिया का सिटीजन नहीं माना जाएगा, मतलब ऑटोमेटिकली उसकी जो सिटीजनशिप है वो खत्म हो जाएगी। ओके, पर्सन voluntarily acquires citizenship of foreign state shall not be deemed to be Indian citizen। Easy। ठीक है, तो अगर किसी बंदे ने, किसी भी सिटीजन ऑफ इंडिया ने वॉलंटरली दूसरी जगह की जाके सिटीजनशिप ऑब्टेन करनी है, कि वॉलंटरी एक्विजिशन बाय अ सिटीजन ऑफ डिफरेंट फॉरेन स्टेट बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो उसकी जो फॉरेन उस बंदे की जो सिटीजनशिप है वो उसकी नहीं मानी जाएगी। ठीक है, अगर किसी पर्सन ने फॉरेन सिटीजनशिप आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एक्वायर की है, तो वो जो प्रोविजंस हैं वो सिटीजनशिप एक्ट 1955 डील करता है। मैं दोबारा से एक बार इस चीज को रिपीट कर रही हूँ कि इन केस अगर किसी पर्सन ने वॉलेंटरली दूसरे फॉरेन स्टेट की सिटीजनशिप एक्वायर करी, ठीक है, किसी इंडियन सिटीजन ने वॉलेंटरली दूसरे किसी स्टेट की, फॉरेन स्टेट की सिटीजनशिप एक्वायर करी, ओके, कब, बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो वो इंडिया का सिटीजन अब नहीं माना जाएगा। अगर उसने आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसी और फॉरेन स्टेट की सिटीजनशिप एक्वायर करी, तो उसको हम सिटीजनशिप एक्ट 1955 के अंडर डील करेंगे। ठीक है, ये चीजें बहुत सारे केस लॉज ने भी बोली हैं। फॉर एग्जांपल
स्टेट ऑफ एमपी वर्सेस पीर मोहम्मद। ओके, तो ये कहता है, आर्टिकल 9 कहता है नो पर्सन शैल बी सिटीजन ऑफ इंडिया बाय वर्च्यू ऑफ Article 5 or be deemed to be a citizen of India by virtue of Article 6 or Article 8 if he has voluntarily acquired the citizenship of foreign state. Okay, so this is the essence of Article 9. उसके अलावा इसका पर्पस ये भी है कि ये ड्यूअल सिटीजनशिप या प्लूरल सिटीजनशिप कोई क्लेम नहीं कर सकता। ओके, इसका जो प्रिंसिपल ये बताता है इस चीज से, वो कहता है कि नो ड्यूअल सिटीजनशिप, नो ड्यूअल सिटीजनशिप, कि भाई अब क्या सच में किसी इंडियन सिटीजन ने किसी फॉरेन कंट्री की सिटीजनशिप एक्वायर करी है या नहीं करी है, ये चीज कौन डिसाइड करेगा? दिस विल बी डिसाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, और इसके अंदर कोर्ट का कोई सेन नहीं होगा। मेयर प्रूफ कि भाई किसी बंदे ने दूसरी जगह का पासपोर्ट है, ये उस चीज को, उसको डिपोर्ट करने के लिए, इंडिया से भगाने के लिए, उसको प्रोसिक्यूट करने के लिए नेसेसरी या इनफ नहीं होगा। उसके लिए आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से एक डिसीजन की रिक्वायरमेंट है, और सेंट्रल गवर्नमेंट इसकी जो इंक्वायरी करेगी उसको आपने क्वाजी जुडिशियल बोला है। ओके, एंड इट इज नॉट फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द कोर्ट टू सी क्या उसने दूसरी जगह की सिटीजनशिप ली है। ये चीज सुप्रीम कोर्ट ने बोली है स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश वर्सेस कादर के केस में। सो आंध्र प्रदेश वर्सेस कादर का केस बिकम्स इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एंगल्स ऑफ आर्टिकल 9। कादर 1961, तो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी क्या सच में उसने सिटीजनशिप एक्वायर करी है या नहीं करी है। ओके, कमिंग टू आर्टिकल 10, कि भाई की जो आपकी जो सिटीजनशिप है वो ऐसे खत्म नहीं होगी अगर एक बार आपको सिटीजनशिप मिल गई। ठीक है, कि एवरी पर्सन हु इज डीम्ड टू बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया अंडर प्रोविजंस 5 to 8 वो कंटिन्यू करेगा, इंडियन सिटीजन कंटिन्यू करेगा। लेकिन अगर कोई भी लॉ बनता है आगे, तो उसके जो सिटीजनशिप के राइट्स हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोवाइड करे हैं, वो राइट्स जो हैं वो सिर्फ कोई ले सकता है। तो कौन ले सकता है? कैन बी ओनली टेकन अवे बाय एन एक्सप्रेस लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट मतलब द यूनियन पार्लियामेंट। तो आर्टिकल 10 कहता है अबाउट कॉन्टिन्यूएंस ऑफ राइट टू सिटीजनशिप। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सिटीजनशिप राइट्स हैं गिवन under the provisions under constitution can only be taken away by express law made by union parliament for this purpose. Okay, this was held by the Supreme Court. The same thing, the interpretation was held by the Supreme Court in Ibrahim Wazir versus State of Bombay, 1954. Now, coming to the last article, that is, Article 11. Article 11 जो है वो यूनियन पार्लियामेंट की पावर के बारे में बताता है कि भाई ये जो है, द टाइटल इज पार्लियामेंट टू रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजनशिप बाय लॉ। तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा कोई और लॉ बनना चाहता है इंडिया में, तो वो पार्लियामेंट बनाएगा। तो इसका मतलब है कि आर्टिकल 11 गिव्स पावर, द कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू आर्टिकल 11 empowers, okay, empowers union parliament to do what? To make law with respect to acquisition or termination of citizenship after commencement
of Constitution. ठीक है, तो इस एक्सरसाइज को करते हुए, इस पावर को रिकॉग्नाइज करते हुए फॉर्मली पार्लियामेंट ने सिटीजनशिप एक्ट बनाया है 1955 का. वो फॉर्मली कॉन्सेप्ट ऑफ कॉमनवेल्थ सिटीजनशिप को रिकॉग्नाइज करता है. हाउएवर ये कंपनीज, एसोसिएशंस, बॉडी ऑफ पर्संस, इनको सिटीजनशिप प्रोवाइड करने की बात नहीं करता है. तो जनरली स्पीकिंग व्हेन वी आर सेइंग ऑफ सिटीजनशिप एक्ट, तो जो हम कल पढ़ेंगे, तो उसके अंदर हम दो चीजें मेजरली पढ़ेंगे कि भाई कैसे आप एक्वायर कर सकते हो, और दूसरी चीज आप कैसे सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955, इसमें हम दो चीज पढ़ेंगे, एक्विजिशन. ओके, सो एक्विजिशन पर्टिकुलरली आप कैसे एक्वायर कर सकते हो सिटीजनशिप. आप बर्थ से एक्वायर कर सकते हो, बाय बाय डिसेंट से आप कैसे एक्वायर कर सकते हो, रजिस्ट्रेशन से आप कैसे एक्वायर कर सकते हो, और चौथी चीज है नेचुरलाइजेशन. नेचुरलाइजेशन मतलब आप इधर के ही हो गए, इधर रहे बहुत साल तक और फिर आप इधर के ही हो गए. ठीक है, आप इसको कैसे एक्वायर कर सकते हो. और दूसरी चीज हम पढ़ेंगे, आपकी सिटीजनशिप को टर्मिनेट कैसे किया जा सकता है. Okay, removal or taking away, how can it be taken off, or how can it be discontinued. So the three things which we will study: termination. तो तीन तरीके हैं टर्मिनेशन के. सबसे पहले खुद ही बोल दे मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को किसी और स्टेट की, किसी और देश की सिटीजनशिप चाहिए. रिनाउंस करते हैं, अबैंडन कर दे. रिनंसिएशन, कुछ गड़बड़ किया, उसको टर्मिनेट कर दिया, तेरे को नहीं देंगे सिटीजनशिप, बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, टर्मिनेशन. और तीसरी deprivation, we'll deprive him, he'll not get it, rejected maybe. Okay, so three ways of termination of Indian citizenship under the Citizenship Act of 1955, and particularly 4 ways of acquiring citizenship under the Act of 1955: by birth, by descent, by registration, by naturalization. So that is all for today, and let's meet you in the next class. We will be continuing with part 2 of the citizenship provisions under the Constitution, read along with Citizenship Act of 1955 and the various amendments that have taken place in the Act, particularly the 1986 amendment, the amendment in the 2000s, and the latest amendment in 2019. So that is all for today's class. Thank you. Keep learning, keep watching, and keep supporting Legal Sticks Law School. And we hope the kind of the courses that we are building for you are helping you in preparing for your law exams currently, and are making a good base for you for cracking up any kind of competitive exams that you might take in future. So thank you for the day. Have a nice day, everybody, and let's break off now. Thank you.